क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए support@coinswitch.co पे संपर्क करें। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एवरीबॉडी से टी हब सुना गया, टी हब गया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। We want to get more young people to think about turning entrepreneurs. बॉटलवर्स क्या है? मेटावर्स हमने सुना है, लेकिन बॉटल एंड मेटावर्स, व्हाट इज दिस इंटरसेक्शन? You can register anywhere, but you come and build here because this is the best place to go 0 to 1. हेलो, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्रिप्टो क्रांति। मैं हूं अंकित और आज मैं खड़ा हूं एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप जैसे दिखने वाली बिल्डिंग में जिसका नाम है टी हब। दैट्स राइट, मैं हूं हैदराबाद तेलंगाना में, जहां पर सरकार कोशिश कर रही है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3 में जो क्रांति हो रही है इसे बढ़ावा देने का। कैसे स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेटर्स को, इनोवेटर्स को मदद की जा रही है, ये हम जानेंगे। आज हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे टी हब के सीईओ एमएसआर। इसी के साथ ये जानेंगे कि कैसे हैदराबाद कोशिश कर रहा है इंडिया का वेब3 कैपिटल बनना। T-Hub, it has become a buzzword not just for Web3, blockchain, crypto, but also startup ecosystem में everybody is like T-Hub सुना गया, टी हब गया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। So talk to us two things. One, इसका genesis कैसे हुआ, क्यों T-Hub बना, वो एक आइडिया। And the second question, which is a crystal ball gazing, how would you measure the success of T-Hub in months, years to come? When the first set of IT services, the boom started happening back in the mid-90s, Hyderabad was one of the forerunners. So we had companies like Satyam, companies like Infotech, etc. We started out, in and around that time. And at one point of time, I think we were doing super well. We were probably, neck to neck with something like Bangalore at that point. Back in the 90s. Hyderabad became known as Cyberabad. Cyberabad, correct. And we had, some pretty progressive leadership, forward-looking, very keen to see how IT could be leveraged for multiple things, create jobs, add to economic development, and also obviously leverage IT for the greater good of, businesses, people, etc. Telangana was formed on the June the 2nd, 2014. And the leadership, which is also the leadership which is currently in power, very progressive, forward-looking, visionary leadership, said, listen, we must do something to make sure Telangana gets its place in the sun, and basically drives two focus areas. How do we foster and promote innovation, and how do we encourage entrepreneurship? Right? So that was the concept. We do a large number of corporate engagements. We work with corporates in helping corporates leverage the, what we call the open innovation ecosystem, for example. And we run corporate accelerator programs. We run corporate learning and development programs on innovation, etc. Then we run programs for startups. We have different programs for startups. We want to get more young people to think about turning entrepreneurs. All the best, MSR. Thank you. Cheers. हैदराबाद के टी हब में हम हैं और यहाँ पे लिटरली क्रिप्टो क्रांति इज टेकिंग शेप। दो अमेजिंग फाउंडर्स के साथ आज बात होने वाली है। दार्निश जो बॉटलवर्स बना रहे हैं, 4 बॉटल किस चीज की बना रहे हैं वो समझ में आएगा थोड़ी देर में। एंड संतोष जो एक नो कोड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं टोकन्स के लिए जिसका नाम है ऑटोनॉमी। वेलकम टू क्रिप्टो क्रांति संतोष एंड दार्निश। Thank you so much for having us over. हैदराबाद में क्या हो रहा है? फरवरी 2022 में 13,000 एक्टिव जॉब्स थे वेब3 को लेके सिर्फ हैदराबाद में। देश भर के 10% से ज्यादा वेब3 स्टार्टअप्स हैदराबाद से बने हुए हैं। लेकिन यहां पर जो वक्त हमने बिताया है, टी हब जो तेलंगाना गवर्नमेंट का गजब का प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है, यहां पे एक सेपरेट ब्लॉकचेन और वेब3 का सेल लॉन्च हुआ है जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। तो आज इन दोनों से जानेंगे टी हब से नए स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को, इनोवेटर्स को क्या मिल रहा है और इनके प्रोडक्ट्स दुनिया को कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सो टॉक टू अस अबाउट टी हब एग्जैक्टली क्या करता है जब कोई नया स्टार्टअप फाउंडर आता है एक नई ब्लॉकचेन, वेब3, मेटावर्स, क्रिप्टो की आइडिया लेकर।
तो टी हब जब से बनी है तब से एंटरप्रेन्योर की मदद करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट वेज से। मतलब एक जगह है पहले, फर्स्ट टी हब इज़ ए प्लेस वेयर कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, डिज़ाइनर्स सब लोग आके काम कर सकते हैं। और एक और जगह है उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर, लैब 32 बोलते हैं टी हब में, जहाँ पे स्टार्टअप्स आ सकता है, फाउंडर्स आ सकता है एंड वो मेंटर्स, एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स से मिल सकता है। ये है इंक्यूबेटर। और सेक्टर के हिसाब से एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स रहते हैं टी हब में, जैसा 3 महीने का एक्सेलरेटर प्रोग्राम रहते हैं जो कॉर्पोरेट के पार्टनरशिप से या फंड के पार्टनरशिप से बनाते हैं ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ये जब 3 महीने का रेजिडेंसी चल रहा होता है तो जो फाउंडर्स होते हैं इनको कुछ एक मतलब डू दे आल्सो गेट अ ग्रांट, क्या उनको कुछ सैलरी, स्टाइपेंड ऐसे कुछ मिलता है? नहीं, सो एक्सपोजर मिलता है। सो टी हब Okay. इज अ कम्युनिटी, Okay. सो द वैल्यू यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस कम्युनिटी। नेटवर्क आपको जो मिलता है। हाँ, ये नेटवर्क मिलता है पहले एंड मतलब आप यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? दूसरे से सीखने के लिए भी जाते हैं। करेक्ट। जैसा डार्निश जैसा एंटरप्रेन्योर्स को मिल सकते हैं एंड एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा वाइब्रेंट कम्युनिटी है हैदराबाद में एंड ये सेंटर पॉइंट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज। गॉट इट। सो यहाँ अभी हैं 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे Right. Wow. Around 2000. community में। yes. Yeah. तो दानिश सिर्फ 23 साल के हैं, ही इज ओनली 23 and he Oh, God. started working on his startup idea when you were 21, 22 Right. with your brother, With my brother. right? Okay, तो Bottleverse क्या है? Metaverse हमने सुना है, लेकिन Bottle and Metaverse, Yeah. what is this intersection? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? So we are actually building a metaverse for the liquor industry, and this is actually for the US market more than the Indian market. But we want to make this in India because resources here, they are very passionate about learning things and executing things and making to change the world and to do a good project. And yeah, that is what is India is all about. Wait, so अमेरिका में मेटावर्स के Yeah. जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे Decentraland, which is one of the biggest virtual real estate Yeah. platforms, Snoop Dogg से लेके 50 Cent से लेके सारे सेलिब्रिटीज का वहां पे डिजिटल प्लॉट है। Right. तो वहां पे आपकी दुकान है। Yeah. यहाँ पे टी हब में से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? It's actually a really beautiful journey. Starting में we didn't understand like what to do with this project and everything. Though my brother was helping me out, we wanted to learn more about the blockchain industry, how we can leverage crypto and everything with our project as well. Because there are few apps that I've been seeing around, that an app that pays you while you game. Okay. So P2E, play to earn. yeah, play to earn. So there's one app which says walk and I'm going to give you crypto. Step. Then we understood that okay, this is something like a reward system. What's going to happen in the coming future, and why not integrate that with the community and grow it accordingly. So that's when we met Santosh, and we really like the way Autonomy are doing their things, and we are like, let's integrate with them, let's learn from them, because they have so much of industrial experience than us. Correct. And that's when T-Hub actually gave us this opportunity to meet, and that's where things are shaping So cool. out. You worked in London, और लंदन से आप वापस यहाँ पे हैदराबाद आए हैं। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप in terms of skill, talent, readiness to build platforms in Hyderabad or in India for the world, compared to the Western world and here? कैसे लगता है आपको, सिचुएशन या सिनेरियो कैसा है? So actually this was a question I asked myself before moving here. So before moving here, I was a digital nomad for 4 years. Oh wow. I lived in like 8 countries during that time. And what I observed is there are places where value is built and there are places where value is traded. And often some of the most developed cities are actually places where value gets traded. And it sometimes becomes more, it's not economically affordable always to build value from those places. I always had my engineering team in Hyderabad even when I was outside India. And I always believed in India always has been a build first country. I think it had fantastic engineers. So I realized if I want to build a product, I want to build from India. Sweet. And Hyderabad was a natural choice for me because I am from here, one. Sweet. Here the government thinks like a startup. It doesn't have to act like one because
there are more lives at stake when you are experimenting, but it at least has to think like a startup and be pro innovation, right? मुझे ऑटोनॉमी के बारे में बताइए। Right. ये शूट शुरू करने से पहले हम जो बात कर रहे थे, इट ब्लू माई माइंड। आप एक नो कोड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपको पता नहीं है नो कोड क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक JavaScript, Java. PHP, एग्जैक्टली .NET. ये ऐसे करना पड़ रहा था। इट वाज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ वेबसाइट विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट। लेकिन पिछले कुछ सालों में वेब 2 की दुनिया में नो कोड मूवमेंट इतनी बड़ी हो गई है, जिससे अंकित वेंगुर्लेकर, जिसको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, मैं दुनिया की सबसे चकाचक वेबसाइट बना सकता हूं Yes. एंड सामने वाले को, यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि बैकएंड में क्या हो रहा है। करेक्ट। वेब 1.0 में हम वेबसाइट्स बनाते थे, वेब 2.0 में एप्लीकेशंस बना रहे थे, और वेब 3.0 में हम बना रहे हैं टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? दो तरीके का टोकन्स होता है, एक फंजिबल टोकन्स होता है, एक नॉन फंजिबल टोकन्स होता है। फंजिबल टोकन्स जो आप कॉइन स्विच कुबेर पे जाके ट्रेड करते हो, जो क्रिप्टो, उसको बोलते हैं फंजिबल टोकन्स। मगर अभी ये टोकन्स हैं सिर्फ डेवलपर्स बना सकते हैं। जी। ये प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन कैसे है? आप एक ब्लॉकचेन को यू हैव टू पिक, कैन पिक इथेरियम, कार्डानो, पॉलीगन, पोल्काडॉट। हर एक ब्लॉकचेन का उसका अलग टेक स्टैक है, तो एक डेवलपर को आपको हायर करना पड़ेगा जो उस टेक स्टैक में कोडिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो नॉन डेवलपर्स हैं, दे आर लॉक्ड आउट ऑफ दिस इकोसिस्टम। ऑफ कोर्स उनके तो Right. दिमाग में ही कुछ बैठेगा नहीं कि तो- ये हो क्या रहा है। So how can we make this process simpler for brands, communities, creators who are non-developers? How can they come on to Web3 and build value? We felt it makes sense to build something which helps other people who want to build value. We've done an experiment with this movie called Brahmastra. आपने हाँ. देखे होंगे, जो धर्मा और डिस्नी ने बनाया। या ऑफ कोर्स। तो हमने उसका म्यूजिक लेबल सोनी म्यूजिक से पार्टनर किए हैं, एंड वी लॉन्च्ड एन NFT कॉल्ड केसरिया NFT। ओके। जो लोग ब्रह्मास्त्र में एक सॉन्ग है केसरिया, हाँ। सो वो सॉन्ग पे रील बनाते हैं हाँ। और वो रील को ज़्यादा रीच लेके आएंगे। मतलब फैन को मूवी प्रमोशन में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हाँ। और फैन को इंसेंटिव्स कैसे दे सकते हैं। ओके। ये एक्सपेरिमेंट किए हैं हमने। ओके। तो इससे हम केसरिया NFT लॉन्च किया। 200 ऑड क्रिएटर्स पार्टिसिपेट किए थे इस हाँ। कॉन्टेस्ट में। हाँ। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। एक एंड और- क्रिएटर्स को फिर कुछ ये मिलता है, रिवॉर्ड या रेम्यूनरेशन मिलता है। यस, जो भी ये क्रिएटर कॉन्टेस्ट विन किया है उसको अमेजॉन कूपन्स, मीट एंड ग्रीट, मतलब वो जाके स्टार्स को मेरे मिल ख्याल से सकते ये हैं। पहली बार हुआ होगा बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस किस्म का एक्सपेरिमेंट। पूरे देश में एक अनईजीनेस है, एक टेंशन है कि अमेजिंग जो टैलेंट है वेब 3 का, क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का, मेटावर्स का, ये दुबई जा रहे हैं, ये सिंगापुर जा रहे हैं, ये एस्टोनिया जा रहे हैं, बाकी डिजिटली फॉरवर्ड कंट्रीज जा रहे हैं। इट्स अ ह्यूज लॉस टू इंडिया, ब्रेन ड्रेन होना। इसी के साथ हमने ये भी रिपोर्ट्स देखे हैं कि दुनिया भर में इंडिया ऑलरेडी टैलेंट के मामले में, कंपनीज रजिस्टर्ड के मामले, पूरी दुनिया में वेब 3 में इंडिया इज ऑलरेडी नंबर 3, Yeah, राइट, विच इज रिमार्केबल, क्योंकि वेब 3 तो अब शुरू ही हुआ है और पैदा ही हो रहा है। correct. तो कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? इंडिया में टैलेंट है वो कई नहीं मिलते हैं कहीं मेरे नहीं और। हिसाब से। मतलब इट्स ए फैंटास्टिक टैलेंट पूल ऑफ इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड आल्सो people who have this long term view. So I'm a big fan of somebody who thinks has long term view, right? So any growing industry, if you take a long enough horizon, you will be successful. Wow. Because that industry, you will grow with the industry, right? So my advice would be, yes, India can take some time for all of this. You can incorporate your company anywhere because India doesn't have regulations, and maybe it's a loss to Indian Treasury. tax authorities, Tax, yeah, let's say. yeah. But that being said, you can register anywhere, but you come and build here because this is the best place to go 0 to 1. ऑलराइट, क्रिप्टो क्रांति के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप संतोष और दानिश को सोशल मीडिया पे कहाँ फॉलो कर सकते हैं? लिंक्डइन, ट्विटर? At Autonomous X, Twitter, आप नीचे देख ही रहे हैं। Instagram. अमेजिंग, Same. I'm on LinkedIn for Bottleverse and Twitter as well. अमेजिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच आउट टू अस। हैदराबाद में हमारा आना हुआ था कॉइन स्विच कुबेर के वेब 3 ऑफलाइन कम्युनिटी मीटअप ब्लॉक बाय ब्लॉक के लिए। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, तमाम शहरों में हमने ये किया है, लेकिन हैदराबाद में आके देखा टी हब के जरिए कि जब एक ओपन टू न्यू आइडियाज
स्टार्टअप माइंडसेट वाली अगर सरकार होती है तो फिर चीजें किस रफ्तार से जाती हैं, क्या क्या अमेजिंग चीजें बनती हैं। टी हब इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है हैदराबाद वाकई में इंडिया का वेब3 कैपिटल बन सकता है? वुड लव टू हियर योर थॉट्स। इसी के साथ जाने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने तमाम वेब3 एंथुजियास्ट दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपने डाउस में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कॉइनस्विच कुबेर यूट्यूब चैनल। घंटी भी बजा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए इट ड्रॉप स्ट्रेट इन योर इनबॉक्स नाइस एंड हॉट। दिस इज अंकित साइनिंग आउट फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए support@coinswitch.co पे संपर्क करें।